पिछली बार हमने वेजिटेशन का कनेक्शन किया था. आई गिवन यू होमवर्क ऑल्सो. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो पूछे. Any question or doubt if you have on that, please ask. Online students, kindly confirm the audio and the video. I hope I'm audible and visible. Good afternoon to all. हाँ जी. क्वेश्चन पेपर के दो डाउट है. कौन सा क्वेश्चन पेपर? अच्छा, यहाँ पे टेस्ट हुआ था, बताओ. How can a semi-arid region have seasonal floods? अच्छा, और when Titicaca is a crater lake, how can it have a tectonic origin? ठीक है. So everyone, welcome to the class. We're starting the class. So we haven't discussed why so many lakes in America. We'll talk about that. So first thing, everyone. So school mein, have we done this? Have we done this or not? So now the question is, first is, how can, so he has a question that was asked in the question, how can semi-arid region have floods? ऐसे कुछ है? Yes or no? That's the question. Have we done A in school? Yes or no? Did we ever question this? कि यही गलत है. When the teacher said that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, did you say bakwas hai? No. The onus lied on you. The onus is on you to apply your concept, to open the bracket, use the BODMAS and derive that. Yes or no? True or not? So in prelims, why people are failing every year? They get a statement. And the statement has never been talked to them in the class. ये तो पता है नहीं, ये तो गलत है, ये कैसे हो सकता है? Now you tell me, Haryana is semi-arid area. Chandigarh is a part of Haryana. If too much rain happens, तो Chandigarh and Haryana में can there be flood? Then why is he asking this? My question is this. Sir, ये question समझ में नहीं है. How can semi-arid region have flood? So semi-arid is जिसके पास रेन कम आती है. Yes or no? रेन कम आती है और ज्यादा आ गई तो रोक सकते हैं क्या? नेचर है ना. Anomaly will happen. Abnormality can happen or not? Say for example, Virat Kohli just missed his century. Virat Kohli 0 पर भी out हो सकता था. If he goes out on 0, do you say that he doesn't know how to play cricket? No. So ये जो question आया, मेरी ये समझ में नहीं आया कि how could we question the question? Now, from the thought and understanding that we have got, it is our responsibility to prove it now. That how can semi-arid area have flood? Simple. Because of an erratic monsoon, it can have flood. ज़्यादा पानी आ गया, कोई दिक्कत? तो मुझे नहीं समझ में आया क्यों है. राजस्थान में बाढ़ आ जाती. राजस्थान is sandy soil, उसमें बाढ़ आ जाती. Arid area can have flood. So when this is there, so I am saying, what's the point of teaching? This is where the teaching has a question mark in India. This is where your right brain has to work. The left brain will immediately say, ये कैसे हो सकता है? Right brain कहेगी, ये तो given है, ये तो होता है, now prove it. The left brain is saying, sir ने तो बताया, semi-arid area is an area of moisture stress. Yes, it is an area of moisture stress. Climatically, it does not receive that much water. I agree. But अगर आ गया तो 2004 में इंडिया में ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वी वर स्ट्रक बाय सुनामी. उससे पहले कभी नहीं हुआ था. हो गया तो हो सकता है कि नहीं हो सकता. क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग और नॉट. Islands which were happily in the Pacific Ocean, now they are getting submerged. So he says, how can it happen? तो फिर से बताया, इसीलिए बोला था अपना लेफ्ट और राइट दोनों है. ये बेवकूफी करोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर हाउ विल वी पास? लेफ्ट
brain person straight away says that this question is out of syllabus. I don't know this question, so I am out of the game. Right brain would say, अच्छा ठीक है, I don't know how to derive this, but I know that a plus b और a plus b ये bracket तो कर ही सकता हूँ. And then can I go BODMAS way, open the bracket a into a plus b into a plus b? है या नहीं? I do not know whether I'll come to this, but at least I'll start my steps. So, sir, I have a doubt in the question that was asked in the test. Sir, how can there be flood in semi-arid region? दिल्ली में फ्लड नहीं आते, यहाँ लाल किला तक पहुंच गया था 2 साल पहले. कैसे पहुंच गया? Rivers can change their course. Ask people in Bihar. The area which was never under impacted by flood, because the river changed the course, flood came. Why are we confusing semi-arid? Semi-arid is a climate phenomena. Yes or no? Flood is not a climate phenomena. Flood is a situation of water excess. एक डैम बर्स्ट हो जाए, फ्लड नहीं आ जाएगा. सेमी एरिड हो चाहे एरिड हो, कहीं पर भी हो सकता है. रिमेंबर लेक मीड इज बिहाइंड हूवर डैम. इफ हूवर डैम इज ब्लास्टेड, वेनेजुएला वालों को लोड चढ़ गया, उन्होंने सच में वो ले लिया फेंटेनिल, जो ये कहानी सुना रहा था. इफ ऑल वेनेजुएला, उस पर यही चार्ज लगाया ना डोनाल्ड ट्रंप ने, दैट दे वर स्मगलिंग ड्रग्स. मान लो सारे वेनेजुएलंस ने चढ़ा लिया, अच्छा वाला सॉलिड डोज, फिर ले हूवर को उड़ा दिया, तो बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? तो सवाल कैसा सवाल करे, सोचो ना उसको. सोचेगा कि नहीं सोचेगा? एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स? लेफ्ट ब्रेन जाओगे, लेफ्ट ब्रेन ही रिजल्ट आएगा. एंड द गुड थिंग इज दैट वी आर बोथ ब्रेन्स. इफ आवर लेफ्ट ब्रेन इज नॉट गिविंग द आंसर, बी देयर राइट ब्रेन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अजीब सा ऑप्शनल है. So I had that. So my teacher would always tell me, when you reach the examination hall for writing your mains, when you look at the pub-ad questions, you will feel मुझे कुछ नहीं आता. Stay there. 10 मिनट में कुछ कुछ आने लगेगा. By 15 minutes you would know everything. Because पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर को बहुत राइट ब्रेन पढ़ाना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही लेफ्ट ब्रेन पढ़ाते थे. बट वन टीचर सेड कि डोंट वरी, वो सब वही होगा. कैन वी गेट क्वेश्चन पेपर ऑफ टेस्ट? कहाँ से लाऊं? मुझे पता भी नहीं कहाँ से क्वेश्चन पेपर लाया यार. उसने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया. एंड आई रिमेंबर वी एंडेड द क्लास ऑन लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन. आई ऑफर्ड यू द की, आई ऑफर्ड यू द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स. देयर विल बी वेरी मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच विल से, लेफ्ट ब्रेन विल से ये नहीं होने वाला. दोस्त था, दोस्त ने आपसे बदतमीजी की, आपको चीट किया, एंड यू डोंट वांट टू सी हिज और हर फेस. दैट्स लेफ्ट ब्रेन. Right brain would understand why that person behaved like that. Generally what happens is, a masculine brain is out to punish any mistake, and a feminine brain is going to look at why that mistake happened. It is said that women, it is said, I am not supporting that, some people say that women in leadership position are not there because they are not good decision makers. Now, whether that is correct or not, that remains a question. I think men in decision making situations are very instinctive. बहुत जल्दी decision ले लेते हैं. They take decision and then they realize that it has consequences. A woman on the other hand first looks at the consequences. इससे ये होगा वो होगा. यार ये तो उधेड़ बुन में लगी रहती हैं, ये decide नहीं कर पाती हैं. Trust me, their decisions would be lasting. And I'm not supporting man or woman in this. I'm just saying that there is a man in us, there is a woman in us. Man would be instinctive, first look, यार ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है. Impossible. True or not? But the person in us, the right brain would say, semi-arid is an area which does not get rainfall from the top. कहीं और से तो आएगा. कहीं और से आएगा. That is how it will happen. True or not? So that's what I'm inviting you into. पिछली क्लास को ही कंटिन्यू किया मैंने. I thought the message was important. जी, do we have something here? Thank you. चले वापस आए. एक और क्वेश्चन था, दूसरा क्या था?
Titicaca crater lake है. Titicaca is a crater lake. Again, LHS is equal to RHS पे जाना है. We know Titicaca is a crater lake. How can it have a tectonic origin? Okay. So first of all, stop being so left brain rigid कि यार ये तो गलत है. अभी तो दे दिया ना. This is the question. This is the question. Now you have to find out that how to solve it. Yes. So what is tectonic? Associated with plate movements? Yes or no? So plate movements are happening. Subduction is happening. This one goes down, and subduction. This leads to volcanism. Yes or no? So tectonic leads to volcanism, and that process, any result of that would be tectovolcanic. Yes or no? So crater lake, where is it created? Titicaca यहाँ पर, इस पर बोलिवियन प्लेटू पर है. नाज़का प्लेट जा रही है. भाई वोल्केनो कहीं से तो आया होगा. तो आया होगा तो वोल्केनो का, नाउ द माउथ ऑफ द वोल्केनो इज लेफ्ट एंड फिल्ड विद वाटर, सो इट्स अ क्रेटर लेक. तो क्या दिक्कत है? हाँ तो ठीक है. अब अनदर थिंग, वोल्केनिक ओरिजिन और टेक्टोनिक ओरिजिन, अगर दो ऑप्शन दे दिए तो हमें वोल्केनिक में जाना पड़ेगा, because if the option is there, because it's a crater lake, that's a, because volcano can be like Kilimanjaro. Kilimanjaro is not a tectonic volcano, it is like वो जो भी हो रहा है, that's there. So what happens is there's so many people in Delhi who've been living here in Delhi, and instead of the examination, the left brain tells them examination तुमसे पास नहीं होगा. So what their left brain starts looking at is security, कि पैसा कैसे बन सकता है, यहाँ पे सर्वाइव करना है. So they become what? Content developers. अपना प्रीलिम्स कभी पास नहीं किया होता, क्वेश्चन बना देते हैं, एंड द कोचिंग वाला विल टेक देम. वो क्वेश्चन बन जाएगा. अब उस क्वेश्चन का वैलिडिटी होगा नहीं होगा, टू दैट एक्सटेंट आर दे करेक्ट और नॉट, दैट बिकम्स क्वेश्चनेबल. सो वन स्टूडेंट कॉल्ड मी, ही सेड सर, जम्मू टू कश्मीर, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर, which way will you pass? A is Nathula, B is Jawahar Tunnel, C is Pir Panjal या Banihal Pass, and D is Shipkila. So Himalayas, to cross Himalayas, remember we have a pass which I told you about, Uspalata Pass. So Himalaya को भी cross करना है. So if you are in Jammu, you have to go to Srinagar, you have to cross a pass. So the question was this. Now there is a problem in this question. The answer is Banihal Pass. You pass through which pass? Banihal Pass. Through the Banihal Pass, the government has created Jawahar Tunnel. Both are correct. So what do you give? I said stupid answer. Both are correct. Stupid question. He said सर ये MPPCS में पूछा है. MPPCS में पूछा है तो क्या कर सकता हूँ यार, मतलब again you know PCS has the record of making some error, so this is an error question. What do we do? So I applied my logic that which is wrong, so which is right. So I would say, you know, all are passes, and this is not a pass. This is not a pass. I said Jawahar Tunnel से जाना होगा, वो पास को नहीं ले रहे हैं, or whatever I said. So whatever I said दूसरा था. He said लेकिन सर MPPCS की key में वो वाला है. I said अब तो MPPCS is the boss, because both are right answer, whichever they tick is tick. बोला सर ठीक है तो मैं केस कर दूं इन पर, खाली बैठा तो ये भी कर सकता है. So now comes the question that there will people, see, right brainers will not be stuck on exceptions, left brainers will be. I'm taking time, class abhi shuru nahi hui hai, but I'm taking time. You might consider this as a waste of time, but this is an important discussion because we are interested in clearing the exam. So I was at at JNU doing my masters, and just before the prelims, so I had given my prelims, I had given my mains, and that time I did not get an interview call, so it was my second attempt, and I decided to do masters at JNU in geography. So I was there, and prelims was approaching. So when prelims is approaching, I knew, you know, what to work for prelims, so I stopped going to the masters classes. And JNU has got amazing hostels, and hostels have a common room,
common room में, generally because when the classes are there, everyone is there. So I would choose to read in the common room. So I was there all alone reading. So somebody came to me and he said, Bhaiya, would you help this person? वो prelims 3 बार दे चुका है. Every time he fails his last attempt, if you can help him. I said, see, there is no help in prelims. It's time to study. Last 1.5 months, you should not be talking to anyone. Focus on yourself. So I'm not very keen on that. Tell him to focus. मुला बस उसने सुना है आपके बारे में. He wants to talk or something. I said, okay. चलो क्या करें, वैसे तो अकेले, nobody disturbs, but that day something happened. He said, okay, yes, tell me, what is it? He said, I've been trying this exam. I'm all prepared. My answers are good. Everything is good, but prelims नहीं मेरा पास होता है. I said, okay, so this is, I have a question for which I did not get an answer anywhere. Okay, so what is the question? Which district in India has never reported a dog bite case ever? I heard that question and that question has been stuck to me all my life. आज तक याद है मुझे. मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ. Which district in India has never reported a dog bite case ever? He said, I don't know. And I would advise that you also stop this quest of finding this answer. बोला अगर एग्जाम में आ गया तो, अगर छोड़ दूंगा, ऐसे तो बहुत सारे छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे छोड़ूंगा. What's the problem? He said, जाओ पढ़ाई करो यार. So now what happens is, left brain gets caught with facts, gets caught with these exceptions. कि मैं फेल किस लिए हुआ, डॉग बाइट केस की वजह से फेल हो जाऊंगा. That's not possible. That's not possible because there is a lot of things which the right brain will tell you. So now, सर ये क्वेश्चन है, उधर टेक्टोनिक भी लिखा, वोल्केनिक भी लिखा, आप बताओ कौन सा है. तो यार मैं तो कह रहा हूँ एमपीपीसीएस ने पूछा, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, 100% करेक्ट. And do we get that nowadays they change the key also, answer key also, they get the questions also disqualified. जब हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं, यहाँ भी गलत आ गया यार, क्या दिक्कत है. But our left brain will be stuck to that only. ये लेफ्ट ब्रेन वाले क्वेश्चन इनसे एक पॉइंट तक ठीक है, because we have to memorize things, no? So I said left brain is important, memorizing facts and all those are important, but we should be prepared enough कि अगर बहुत ज्यादा factual है तो छोड़ना पड़ेगा यार. Dog bite case. I was giving my exam for PMT, pre-medical test. In our times we used to have, तब NEET नहीं होता था. This was UP PMT, we call it UPC PMT. So I was all prepared with my chemistry, biology, botany, zoology and physics. And I've been giving all those examinations. There is a person sitting next to me in the examination hall. Just before the examination hall, he says, मूंगफली कौन से प्रदेश में होती है? In which state of India we have more groundnut? अबे डॉक्टरी का एग्जाम देने आया, वो फिजिक्स पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा, बॉटनी पूछेगा. यार मतलब तू मूंगफली कौन से प्रदेश में होती है? I said, छोड़, चलने दे. एग्जाम केम. 7th क्वेश्चन वाज, मूंगफली किस पेज में किस प्रदेश में होती है? I said, इसके पास तो पर्चा है, इसका देख लो. आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज लीक ऑफ पेपर. पेपर लीक हुआ यार. Imagine, like you've given all exams, all medicine related examination, and you are prepared with that grilling physics and chemistry and botany and zoology, and he's asking peanut कहां पर हो रही है. पहले मैंने उसे पागल कहा, फिर मैंने कहा मासूम, ये डॉक्टर बैठा है, ये बन गया है, इसे पता है. So that's what we are talking about. So there will be funny things which will happen in the exam. Be prepared for them. But I'm saying the examination will not fail you for what you don't know. It will fail you for what you knew, but you could not connect it to the question. And that connection would require both your brains, left as well as right. Unfortunately, by practice, we are so left brain. So my geography classes become Nasha Mukti Kendra. उसमें होता है सर 2 बूंद, थोड़ा सा सर, एक ढक्कन से दे दो सर, पूरी बोतल ना भी दो, थोड़ा सा पुराना वाला, चरस के बिना चल नहीं रहा है. So then I have to dictate, चलो लिखो, Europe is the continent. लिखो Europe. Give the heading Europe.
Europe. The continent which has Europe, the continent which has been at the center of world affairs, which has been at the center of world affairs since the industrial revolution, since the industrial revolution, is the sixth largest continent. So seventh is smallest is Australia, is the sixth largest continent, which makes up for around 2% of the earth's surface, 2% of the earth's surface, and around 7% of the total land area. I've been talking about this in the previous continents also. These are two different figures. One is 2% of the total earth and around 7% of the total land. Yes. In terms of population, it is the third largest continent. Size wise, it is sixth largest, and population wise, third largest. Which is the largest? Asia, then Africa, and then Europe. Most of the population, world's population, lives in these around 85% population इन्हीं तीन continents में रहती है. Correct? Please write down this continent through its rich history, this continent through its rich history, colonial conquest, rich history, colonial conquest, diverse culture, colonial conquests, diverse culture, has had a significant geopolitical, economic, and cultural influence on the world. Though it houses only 9.5% of the world's total population, European people can be found in dominant positions across all continents. Can I say this is absolutely opposite of Africa? वो बेचारे अपने कॉन्टिनेंट में नहीं ढंग से मिल सकते, ये सब जगह पर डोमिनेंट पोजीशन अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स. ठीक है. This was just an introduction of Europe. We'll look at Europe. Where is it located? So can we open the world map? And geographically speaking, let's look at its location.
एवरीवन ऑन द वर्ल्ड मैप, ये तो पेज के सेंटर में आता है यूरोप, आधा तो वहीं दब जाता है। यस और नो? इट्स अ टाइनी लिटिल कॉन्टिनेंट दैट वी आर लुकिंग एट। तो पॉलिटिकल की जगह फिजिकल मैप देखें, आई थिंक दैट्स अ स्मॉलर मैप, या उसमें भी पूरे बीच में कट रहा है, कट रहा है। So this looks more like an extension of Asia. As I told you, this is like a peninsula of Asia. So that's one thing that comes to my mind. Which hemisphere is it located? World map में देख रहे हैं, हाँ जी. Which hemisphere? Largely north, largely north. Any important latitude passes through it? आर्कटिक सर्कल, वो भी नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में ही होगा, to the northern part. So I think it lies to the north of Tropic of Cancer also. So if I see broadly, which belt, which thermal belt is this continent? Temperate. Start using those words, no? Tropical, temperate, polar. The cold is a layman term. Now you are in geographical terms. It's a temperate continent. Okay? It's a temperate continent. And 0 to 30 degree, the winds are called trade winds. 30 to 60 degrees, the winds are called westerlies. So यहाँ पर wind क्या है? Westerlies. Westerly means coming from the west. So winds are named after the direction they are coming from. Easterly comes from east, westerlies come from west. So which side will be receiving the wind? जो इनका west है, west के रास्ते में आएंगे कि नहीं है? So they come in the way of westerly. So western side will be the windward side and the eastern side would be leeward. तो क्या ही कहेंगे, but we'll look at that. Now the funny thing is that we will also have to find out where are the boundaries. Boundary भी तो होनी चाहिए ना भाई, एशिया का पेनिनसुला है, so how do we demarcate? So what is the boundary between Europe and Asia? So everyone, I want you to have a look at it. Everyone should be with an atlas. सबके पास atlas खुली होनी चाहिए, world map. For example, some people are saying Ural mountains. Are you seeing Ural mountains? Can you mark them with a marker in your atlas? Ural mountains. Now, if you have marked Ural mountains, I would surely want to make you realize that Ural is a tiny little mountain range. How can it be a full boundary? ऐसे कैसे gap हो गया? So it is, Ural is a part of the boundary between Europe and Asia. Ural is not completely the boundary. There is something else. So south of Ural, you have this sea called Caspian Sea. Did you locate Caspian Sea? South of Ural, Caspian Sea मिला. Ural के एकदम नीचे होगा Caspian Sea. So that's also considered the border between Europe and Asia. दो हो गया. अच्छा, यूराल माउंटेन से a river originates. That river is called River Ural. River Ural originates from Caspian and falls into Caspian Sea. So that river also becomes a boundary. So what is the boundary? First the Ural mountain, then the Ural Sea, and then the Caspian Sea. Now to the west of Caspian Sea we have something called as Black Sea. Do we have Black Sea? Just उसके साथ में that Chintu Little Sea, that is also the boundary. So now what we are doing, we are trying to make a boundary of this. In between Caspian Sea and Ural Sea, there is a mountain range. What is that? Caucasus. The Caucasus is also there. So everyone, now what you have drawn, if you have been marking on your map, you have drawn the boundary between Europe and Asia. It starts from Ural River, then Caspian Sea, then Caucasus, and then Black Sea. Black Sea will have an opening in Mediterranean Sea, and we already know Mediterranean is the boundary between Africa and ऐसे बनती है boundary. Is everyone okay with that? But this boundary is not a natural boundary in the sense that the definition of a continent is a huge landmass surrounded on all sides by water. That is where it fails. That is where it fails. Do we get that? वो fail हो गया. So actually it should be called a peninsula. Actually it should be called a peninsula of Asia. Can we go to Europe map now? Now that you've seen the boundary, and I'll make you draw that also, don't worry. But with the world map, please make sure you keep doing that. That's your right brain being exercised. वो लोग बात आपने फिंगर एक्सरसाइज कर रही होगी, ऐसे घुमा घुमा कर अभी भी सिर घूम रहा होगा.
Done? Are we there? Europe physical map. Europe physical map. I am on the western side of Europe. Western side of Europe. क्योंकि east में तो they are continuing with it. So east पहले east देखते boundary. Let's look at the boundary. Can you see Ural mountains on the eastern side? Physical map. Make sure you've opened physical map of Europe. Can you see Ural mountain range? Can you see south of it Caspian Sea? Can you see the connection between them? A river, Ural river. Ural river और Atlas ने उसको mark भी किया होगा ये boundary है. This is the boundary between Ural and Asia and Europe. अच्छा नीचे can you see Black Sea? Black Sea और Black Sea और Caspian के बीच में Caucasus Mountains. Is everyone with me on this? ये तो boundary आपने देख ली. This was on the eastern side. Now I want you to look at the western side. Can you see Atlantic Ocean? Atlantic Ocean दिखाई दे रहा है. Can you also see North Sea between England and Europe? North Sea. North Sea दिखाई देगा. अब I am in the North Sea. Everyone, I am in the North Sea. In the North Sea, I can see Europe के कुछ peninsula निकले हुए हैं. Can you see peninsulas? Multiple peninsula. ये एक स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला लिखा हुआ ऊपर. यस. उसके बाद लेट्स गो टू मेडिटेरेनियन सी. वहां भी छोटे छोटे कई पेनिनसुला है यार. यूरोप के अंदर से लैंड के पार्ट्स सी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? So geographers, for a pure geographer, Europe should be considered a peninsula, and some people go to the extent of defining Europe as a peninsula of peninsulae. Plural of peninsula is peninsulae. बहुत सारे peninsulas से बना है यूरोप. So peninsula of peninsulae. Did you understand that? We are going to write all of them one by one. Okay. So keep this map open. Let's look at writing something on this Europe. Europe location. Give the heading. जो हम लिख रहे थे उसी में will continue. Europe location. ठीक है. And can you also see through Britain that 0 degree line, Greenwich meridian must be passing. So largely this is in the eastern hemisphere, but a part of it would be in the west. So please write down. Europe is Europe is located entirely in the Europe is located entirely in the northern hemisphere. In the northern hemisphere and mostly in the eastern hemisphere. Mostly in the eastern hemisphere. Strictly speaking, Europe does not qualify in meeting the definition of a continent. Europe does not qualify in meeting the definition of a continent which requires it to be surrounded on all sides by water. On all sides by water. In the case of Europe, three sides are surrounded by water. Three sides are surrounded by water with Arctic Ocean in the north, Atlantic Ocean on the west, and Mediterranean Sea to the south.
The continent's eastern side, the continent's eastern side is actually a continuation into Asia, is actually a continuation into Asia, and its eastern boundary is defined by a convention, generally defined by a convention. Convention means an agreement, convention, rather than an unobstructed water body, rather than an unobstructed water body. The eastern boundary is defined by Ural Mountains, Ural River, Caspian Sea, the Caucasus Mountains, ये सब आपने एटलस में देख लिया पहले, the Caucasus Mountains and the Black Sea. And the Black Sea. ठीक है. So geographers इसको क्या बोलते हैं? Peninsula of Asia. Yes. Thus, geographers have often termed Europe as a peninsula of Asia. And Europe being called a continent, is yet another example of Eurocentrism. Seen in the discipline of geography. What is Eurocentrism? A philosophy that everything, or Europe is the center of all global affairs. Yes, वो ब्रैकेट में लिख सकते हैं. Eurocentrism bracket, a philosophy that Europe is at the center of all global affairs. So it enjoys a special status by convention. Conventionally यूरोप दुनिया में स्पेशल है, इसलिए हर चीज यूरोप से ही होगा. So do you agree with Eurocentrism कि है ये? Yes. Do you think that this will continue or this is about to come to an end? This will continue. If it were to continue,
देन डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं होती डेनमार्क मांगने की. यूरोप खत्म हो चुका है. यूरोप खत्म हो चुका है. एंड टुडे अमेरिका वांट्स द वर्ल्ड टू सी इट एज द सेंटर. यस. व्हाट इज मागा ऑल अबाउट? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. हम बनेंगे पावर. यस नो. और पीछे चाइना भी खड़ा हुआ है, वो माचा बनाने को तैयार. यस. मेक चाइना great again, whatever we are looking at. So this Eurocentrism has continued, but now it is being challenged. So please write down. वो bracket close कर दिया. However, this Eurocentrism is now being challenged. बहुत से नाम अब यूरोप सेंट्रिक नहीं रह गए हैं. कंट्रीज ने अपने नाम बदल लिए हैं, भाषा बदल रहे हैं, एवरीथिंग. This Eurocentrism is being challenged, and geographers seeing the extensive irregular coastline. Geographers seeing the extensive irregular coastline of Europe with numerous peninsulae have started calling Europe as a peninsula of peninsulae. Have started calling Europe a peninsula of peninsulae. तो एक तो पेनिनसुला ऑफ एशिया है वर्सेस अ कॉन्टिनेंट ए एंड बी. उसका आंसर क्या है? यूरोसेंट्रिज्म. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ज्योग्राफर्स ने इसको क्या बोला है? दिस इज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुले. डन दैट. अब टाइम आ गया यूरोप बनाने का. ओके. सो इफ यू हैव हाफ अ पेज लेफ्ट, तो वहीं से कंटिन्यू कर लीजिए. हाफ और हाफ से ज्यादा है तो वहीं से कंटिन्यू कर लीजिए. इफ यू हैव वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट, देन यू कैन start from a fresh page. Whatever we were writing, I did not have in my mind how many pages you would write, but if you have half page left, you can start with that. Get that? Otherwise, you can start with a fresh page. So fresh page में इस बार बुक को टर्न नहीं करेंगे. Yes? So हम अपने बुक को ऐसे रखने वाले. We'll keep it like this. We'll not turn it. We'll keep it portrait only. And 1/3 of the page we'll put a straight line. 1/3 of your page should be खाली. उसको खाली छोड़ दो. जो भी आपके पास स्पेस है उसको खाली छोड़ दो. Done? 1/3 left. Okay, now everyone please pay attention. Please pay attention. I'm drawing something. और पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर I'll tell you. This extension, this, what have I made? The north of Africa. So can I say यहाँ पर probably Tropic of Cancer है around that. So please be with me on this. Don't be in a hurry. Now you have the full page with you. अच्छे से बड़ा सा बनाना, because entire Europe will come on this. अगर आपने इसको ऐसा बनाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. So make it, use it. Fairly big, अच्छे से बनाओ. बना लो. C का थोड़ा सा extension, then the frying pan. This is Africa. Done? Now all continents were easy. All continents were easy. उसमें C बनाया, ये किया, वो किया. इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है. So we'll be doing that. But be with me, you'll follow it. So first what I'll do is, everyone please pay attention. I'll put a tick mark. बड़ा सा tick mark बनाएंगे. Have you made a tick mark? Tick mark का वो एरो थोड़ा लंबा रखेंगे, ऐसा नहीं करना. V नहीं कहा है मैंने. तो tick mark मीन से थोड़ा लंबा होता है ना. Tick mark is the logo of which जूता कंपनी?
नाइकी का है। तो जूता बनाएंगे लेडीज हाई हील बूट। कुछ ने पहना होगा, कुछ ने खाया होगा, जूता बनाना है लेडीज हाई हील बूट, पूरा स्लांट के साथ। बन गया? एवरीवन विद मी ऑन दिस? नेक्स्ट, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. I'll go parallel to this. I'll come like this. Come parallel. Done. I need this peninsula and then I will close this. Peninsula के बाद I'll close it. Are we done? So this is south of Europe and separating Africa and Europe. What is this? Mediterranean. जूते के आगे फुटबॉल लगाना वो भी लगा सकते. Are we done with that? So I'm coming back on my tick mark. Everyone, I'm coming back on my tick mark. I'll draw a छोटी सी vertical line on this. Have you drawn that? Vertical line on the tick mark side? Yes. English letter J. J for Jai Hind. J. ऐसा होता है J. J बना दिया. With me on this? Now, please pay attention. Everyone please observe this. This is important. ये जो जूता है, मुझे इसके ऊपर कुछ लाना है. ठीक है? So please pay attention. This J, I'll convert it into a mountain peak. I'll go 45 degrees and have another mountain peak. Two mountain peaks. और जूते के ऊपर आने चाहिए mountain peak. Everyone with me on this? हाँ जी. आपने ये देखा है? ओम ऐसे लिखते, 3 भी लिखते हैं ऐसे. So everyone please pay attention. I'm going like this on this. Om. बना देंगे. Attach to it. Done. Now imagine this is a carrot. This is a carrot and a dragon is trying to eat this carrot. This is the tail of that dragon. गाजर खा रहा है वो. Is everyone okay? You come here, the tail of it should be there and underneath this ऐसे चले जाओ. बस ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दो. ये एशिया है, ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा. दिस इज यूरोप. जो भी बना है ये यूरोप. ठीक है. अब बाउंड्री बनानी है. रिमेंबर बाउंड्री. बाउंड्री के लिए क्या चाहिए? एवरीवन पे अटेंशन. पे अटेंशन फर्स्ट. ये जो बनाया इधर, इधर बनाएंगे ब्लैक सी. जस्ट इसी से मेडिटेरेनियन से जुड़ा हुआ ब्लैक सी. इधर बनाएंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड लेक कैस्पियन सी. पहले सी बना लेंगे. डन. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. दिस इज Ural Mountains. From this a river is flowing, river Ural, falls into Caspian Sea, and this is Caucasus. बन गया बाउंड्री. यूरोप इज क्लियर फॉर यू. ये यूरोप है. यस. इफ यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर दीज ब्रिटिश पीपल, तो यहां पर एक समोसा लगा देना. ये समोसा ब्रिटिश समोसा, उसके ऊपर एक और छोटा समोसा आयरलैंड वाला. 2 समोसा. जॉब डन. एवरीवन ओके? Are you on the physical map? Can I give you your water body work? Start करें जो हर कॉन्टिनेंट के साथ करते हैं. Everyone, is the map drawn? Physical map से work starts here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. यहां पर लिस्ट बनाएंगे. रिमेंबर हमने जगह छोड़ी है नीचे, वहां बना सकते हो, नहीं तो साइड में रख सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. क्विकली जल्दी से डालो, नंबर डालो और उसका नाम डालो. Have faith in your work. This will all go in your memory. So don't think ये बस ऐसे ही चल रहा है. Quickly, you should have the atlas, mark them, name them, then only you'll be able to remember them. Quickly, are we done? Done. So my answer number 1 is Barent C. ठीक है, C है. ठीक है, आपकी क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, बट उसमें जब मेरे पास C है तो Barent है. 2 इज White C. यहाँ बहुत सारे C हैं, इसलिए आपको आई एम पुटिंग यू ऑन दैट. नंबर 3 is I'm not getting rid of my work, but I want you to be comfortable. Number 4 is Gulf of Bothnia, Gulf of Finland. Okay. Baltic Sea. 7th is North Sea. 8th is, यहाँ ओशन आ गया, अटलांटिक ओशन. ओके. 9th is बे ऑफ बिस्के. 10th is Mediterranean Sea. 11th is Adriatic Sea. 12th is
Aegean Sea. 13th is Black Sea. 14th is Caspian Sea. याद रहेंगे सारे सीज? ठीक है. क्वेश्चन कम्स इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आते एंड इंपॉर्टेंस फॉर स्ट्रेट्स. सो एवरीवन पे अटेंशन. अब आपको स्ट्रेट्स ढूंढने. 3 स्ट्रेट्स लगा रहा हूं मैं. ये क्या हो गया? 14 हो गया, 15, 16, 17. 15, 16, 17 बताओ. 15, 16, 17. साइड में लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, जहां लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. फिफ्टीन, 16 एंड 17. 15. 15 क्या है? जिब्राल्टर स्ट्रेट. कनेक्ट्स व्हाट? मोरक्को एंड स्पेन को कनेक्ट कर रहा है. सेपरेट. तो मैंने कनेक्ट पूछा है. मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक. ठीक है. अभी कह रहे हैं सेपरेट करता है. किसको सेपरेट करता है? पॉलिटिकल मैप में देख के बताओ किसको सेपरेट कर रहा है. पक्का मोरक्को एंड स्पेन है. ध्यान से देखो. यूरोप और अफ्रीका एक अच्छा आंसर हो सकता है. सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका. बट कंट्रीज पूछ रहा हूं. विच कंट्रीज आर बीइंग सेपरेटेड? चेक कर लो. यूके एंड स्पेन है. आप बिना चेक किए जिद कर रहे हो. एक तो जिब्राल्टर जो टाउन है वो यूके के पास है. भले ही स्पेन दिख रहा है, उस पे जिब्राल्टर ब्रैकेट में यूके लिखा होगा. बेटा फिजिकल मैप देख रहे हो तब से दूसरा वाला मैप देख लो. राजनीतिक मानचित्र देखो. फिर से कह रहा हूं बेटा, आप ही से कह रहा हूं, वो दूसरा देखो. मिला? जिब्राल्टर के आगे यूके लिखा है कि नहीं लिखा है? तो फिर यूके आ गया स्टोरी में. तो when Britishers were leaving their colonies, they were clear कि these strategic trade routes should not go in anyone's hand. And remember, British Queen and Spanish Queen दोनों की लड़ाई थी. तो ब्रिटेन ने कहा भाई जिब्राल्टर तो हम नहीं देंगे. छोटा सा शहर है जिब्राल्टर, सुंदर सा शहर है. दे हैव अ वेरी टाइनी लिटिल एरिया. इवन देयर एयरपोर्ट इटसेल्फ, उसकी लैंडिंग स्ट्रिप इतनी नैरो है कि लैंड करना मुश्किल होता है. वेस्ट इंडीज में होता है इनवेरिएबली. ऐसा होता है कि हम लोग पहुंचते हैं उधर और जिब्राल्टर की जगह स्पेन में लैंड कर जाते हैं. उधर इमिग्रेशन अलाउ नहीं करता. दुनिया की चीजें. दैट्स दैट. स्पेन भी पीछे नहीं हटने वाला था. स्पेन ने कहा चाहिए तो हमें भी. तो जिसे आप मोरक्को कह रहे हो, लुक एट अफ्रीकाज मैप. और मोरक्को का वो हिस्सा देखो, वहां पे लिखा होगा स्पेन. पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका का जिब्राल्टर में वहां पे लिखा स्यूटा. कैन यू लोकेट स्यूटा? ब्रैकेट में स्पेन. मोरक्को. मोरक्को, स्यूटा एंड ब्रैकेट में स्पेन. स्पेन ने कहा हम उधर कर ले रहे. तो मोरक्को तो स्टोरी में आता ही नहीं है. डू वी गेट दैट? इसलिए टीचर का काम होता है पहले उसे दिखा दो, फिर बाद में बोलेगा कि सर ये गलत कैसे हो गया. तो स्पेन हैज कैप्चर्ड दैट लिटिल पॉइंट स्यूटा. स्यूटा बिलोंग्स टू स्पेन, दो लाइज इन द टेरिटरी ऑफ अफ्रीका. एंड जिब्राल्टर बिलोंग्स टू यूके, दो लाइज इन द टेरिटरी ऑफ स्पेन. स्पेन का हिस्सा, बट उन्होंने अपना छोटा सा जिब्राल्टर रखा हुआ है. इज एवरीवन ओके विद द फर्स्ट वन? सो कनेक्ट्स दिस एंड डिवाइड्स अफ्रीका. एंड अफ्रीका में लिख दूं स्पेन. स्पेन का स्यूटा. एंड यूरोप का यूके जिब्राल्टर. इज एवरीवन क्लियर? 16 नंबर बताओ. 16 बताओ.
डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। ये मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया, यहां पर मैं डलवा सकता था उसे। दिस होल एरिया जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, इसको बोलते इंग्लिश चैनल। व्हाट इज इट? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ऑफ डोवर। इसको कनेक्ट कर रहा है इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। इसको गेटवे टू यूरोप कहा जाएगा। इफ यू आर एंटरिंग यूरोप, कैसे यूरोप कैसे घुसोगे? यहीं से घुसना पड़ेगा। तो आप अटलांटिक से आए एंड यू वांट टू एंटर यूरोप, इधर तो अफ्रीका भी है ना, इधर तो मेडिटेरेनियन में तो अफ्रीका, दिस इज होल यूरोप। सो दिस इज कॉल्ड डोवर स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? डोवर स्ट्रेट। डू वी हैव ब्रिटेन का मैप? नेक्स्ट पेज पे देखो, ब्रिटेन का मैप है। एक दो पेज आगे चलोगे तो जैसे पार्ट ऑफ मैप होता है ना, है ब्रिटेन का यही वाला मैप है। दो पेज आगे कहां पे दिखाओ, मिला? हाँ ये वाला, ये ब्रिटेन का मैप मिल गया सबको। अब उसमें जरा डोवर स्ट्रेट ढूंढो। डोवर स्ट्रेट मिल गया उसके एकदम साउथ ईस्ट पार्ट पे। ब्रिटेन पहले ढूंढो, वो छोटे वाला आयरलैंड है, उसमें नहीं फंसना है, मेन यूरोप। और एकदम पेज के बॉटम राइट में, बॉटम राइट में डोवर मिलेगा बेटा। आप हाँ मिल गया सबको यूरोप वाला मैप। इस मैप को, डज एवरीवन हैव दैट ब्रिटेन मैप? तो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ का। एक्चुअली एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, वो मैप यहां से काटा है। दे हैव कट दिस पार्ट। इसी को एक्सपैंड करके दिया कि नहीं आपको? तो इसको मैं एक्सपैंड करके दिखाऊं? मैं एक्सपैंड कर देता हूं इसको। तो ये ऐसा बनता है, ये और थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? ऐसा मैप दिख रहा है? तो दिस इज मेनलैंड यूरोप। ये क्या है? मेनलैंड यूरोप। कंट्री हियर इज फ्रांस। कंट्री कौन सी है? फ्रांस। और ये है, ये अब क्या है, ये क्या है? अब ये बहुत दिक्कत है। सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। एस ई डब्ल्यू स्यू। एस इज स्कॉटलैंड, ई इज इंग्लैंड एंड डब्ल्यू इज वेल्स। इज एवरीवन ओके? ये तीन राज्य हुआ करते थे, तीन राज्य हुआ करते, जस्ट लाइक इंडिया इन द मेडिवल और एंशिएंट टाइम। डिड वी हैव द एम्पायर्स? गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, मुगल तो हट गए, सल्तनत थे और जो थे वो सारे। यस, सो दोज ऐसे तीन एम्पायर हुआ करते थे बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्हेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड, दे सेड वी आर अ टाइनी लिटिल आइलैंड। उसमें भी हम अपना अपना प्लॉट काट के बैठे हैं, बेवकूफ हैं यार। लेट अस यूनाइट। इंडिया वॉज अ ह्यूज कंट्री, हम कभी यूनाइट नहीं, हम आपस में ही काट रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे। बट दीज पीपल सेड लेट अस यूनाइट एंड वी विल बी कॉल्ड एज ग्रेट ब्रिटेन। इज एवरीवन ओके विद व्हाट इज ग्रेट ब्रिटेन? इन तीनों को मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। नाउ ग्रेट ब्रिटेन के बाद अब क्या है यहां पर? ये आयरलैंड है, आयरलैंड के भी दो पार्ट हो गए। दिस इज आयरलैंड। इसका ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड ने कहा हम भी आपसे जुड़ रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड। सो ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड, दे सेड वी ऑल्सो वांट टू ज्वाइन यू। अब हुआ क्या? ब्रिटेन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। दे आर ऑल कैथोलिक्स, दे आर ऑल क्रिश्चियंस, बट द रेस्ट ऑफ द यूरोप इज रोमन कैथोलिक एंड दीज आर प्रोटेस्टेंट्स। सो इन्होंने प्रोटेस्टेंट चुना, तो वहां भी प्रोटेस्टेंट्स हैं। सो दीज आर Great Britain and Northern Ireland. Now everyone please pay attention. In this English Channel there are many islands. क्या है? Islands. Those islands are called Channel Islands. क्या बोलते हैं इनको? Channel Islands. So don't be confused. What did I do? First I connected Scotland, England, Wales
and what did I make out of them? Great Britain. Now I am connecting Great Britain, Northern Ireland and Channel Island. They combine to form United Kingdom. तो जो आप यूके सुनते हो, यूके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस. यूके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस. They used to be a part of European Union. They used to be a part of a trading bloc called European Union, but they decided to move out of it. So UK has come out of European Union. They are not a part of European Union now. And जब से ये लोग बाहर आए हैं, there have been multiple problems on the economic fronts. And in this, the Northern Ireland, just telling you the current affairs part, Northern Ireland is saying, यार ये जबरदस्ती तुमने EU छोड़ दिया. EU gave you access to all the European Union countries without any tax. Yes or no? अब ये अलग से आ गए EU के साथ. So that was a very big thing, but unfortunately बीच बीच में नेशनलिज्म का उबाल मारा. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसमें आया मेक यूके ग्रेट अगेन. यूके ग्रेट के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी. नाउ द नॉर्दर्न आयरलैंड पीपल सेड, भाई हम तो वहीं पे अच्छे थे, हमें अलग करो. दे आर सेइंग वी वांट टू बी सेपरेट. ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा ग्रीनलैंड के बाद, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी बोला, अभी मैंने सोचा नहीं है कि पैसा दूंगा या नहीं दूंगा, बट दे देगा वो. तो यमीन अब्बास इज सेइंग यस सर ब्रेग्जिट. तो ब्रेग्जिट से तो बाहर हो गए, ब्रेग्जिट से दे लेफ्ट EU. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इकोनॉमिक हार्डशिप, एंड द सेकंड थिंग इज दे आर सेइंग अब हम भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे. सो नॉर्दर्न आयरलैंड इज ऑल्सो सेइंग कि हमें भी आना है. तो नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड अलग अलग हैं क्या? बताया तो नॉर्दर्न आयरलैंड ही बताया ना, ओनली दैट पार्ट बिलोंग्स टू यूके. बाकी जो आयरलैंड है वो अलग कंट्री है. नॉर्मली आयरलैंड इज अनदर कंट्री. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड, बिकॉज दे वर फॉलोइंग द सेम रिलीजन प्रोटेस्टेंटिज्म, सो दे डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. ठीक है राजन, समझ में आ गया सभी लोगों को? तो अब हमें कहां जाना है? अब हमें यूरोप एंटर करना है. तो पहले हम इंग्लिश चैनल में घुसेंगे. इंग्लिश चैनल से ऐसे जाएंगे. इंग्लिश चैनल नैरो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा. द नैरोएस्ट पार्ट इज कॉल्ड द डोवर स्ट्रेट. क्या बोलते हैं इसको? ये है डोवर स्ट्रेट. क्या है? डोवर स्ट्रेट. इसका नाम डोवर क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देखोगे एक जगह है जिसका नाम है डोवर. ब्रिटिश साइड में देखो, उस मैप में डोवर लिखा है. फ्रेंच साइड में जो जगह है उसका नाम है कले, CALAIS. ये है डोवर स्ट्रेट. इज एवरीवन ओके? तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है. एवरीवन, इज द ऑडियो वीडियो फाइन? शुभ के बैच में शुभ का स्क्रीन नहीं चल रहा, बाकी लोगों को मिल गया डोवर. डोवर स्ट्रेट. सो आई टोल्ड यू अबाउट वास्को ड गामा. वास्को ड गामा व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू दैट, अफ्रीका के साउथ में उसको एक दीवार दिखाई दी. व्हाट इज दैट कॉल्ड? ड्रेकन्सबर्ग. नॉट ड्रेक्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग. यस, मैंने कहा था एकदम ब्लैक माउंटेन्स है, एज ऑफ द प्लेटू. जब यहां से घुसेंगे तो यू विल फाइंड अनदर वॉल, एंड दिस इज व्हाइट इन कलर. सो डोवर इज व्हाइट इन कलर. ये व्हाइट क्यों है? अफ्रीका वाला ब्लैक था, ये व्हाइट क्यों है? सर वो काले, ये गोरे हो सकता है. व्हाई इज दिस व्हाइट? बहुत सुंदर लगता है व्हेन यू पास थ्रू दिस. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्हाइट वॉल दैट इज देयर. हो सकता है रोज पुताई करते हो, हम गोरे हैं इसलिए देखेंगे. इट्स जियोलॉजी. द रॉक्स हेयर आर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन चॉक. कौन से रॉक्स हैं? चॉक रॉक्स, इसलिए व्हाइट कलर के. These are white color. So when you pass through this, and this is one hell of a busy place. जैसे घुसना होता है, जैसे आपने कई बार देखा, इवन पूसा रोड इज अ वेरी बिजी रोड. आज पूरे रास्ते में चल के आता हूँ, यहाँ सबसे ज्यादा कंजेशन होता है, स्पेशली उस स्टेशन के पास, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास. हॉस्पिटल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ सबसे ज्यादा ब्लॉक होता है. सो सारा इनबाउंड ट्रैफिक, ऑल द ट्रैफिक कमिंग टू यूरोप उधर लाइन में लगाया हुआ. बाहर जाने वाला वो भी आ रहा है. ये दो हो गए. और बीच में आपने सुना होगा, देयर आर पीपल हु क्रिएट रिकॉर्ड ऑफ स्विमिंग अक्रॉस इंग्लिश चैनल. इंग्लिश चैनल में कूद के स्विमिंग कर रहा है कि मुझे तैर के पार करना है. इंडिया से मिहिर सेन, इफ यू हर्ड हिज नेम. तो पहली बात, इधर नहीं कूदता, कूदेगा तो मरेगा.
सबसे नैरो में कूदेगा, ठीक है, सबसे नैरो में कूद रहा है, वो तैर रहा है, उसके साथ बोट भी चलेगी, बीच में हटो 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 चल रहा है, वो रिकॉर्ड बना रहा है, ट्रैफिक जाम, इधर से ट्रैफिक आ रहा है, उधर से आ रहा है, एंड बीच में ये, और यहां आपस में फ्रांस और ब्रिटेन का ट्रैफिक बहुत है, इधर से एक फेरी जा रही है, ब्यूटीफुल पैसेंजर शिप, इधर से एक जा रहा है, सारा चौराहा है ये। मैंने रीच द से जाना किधर से भाई, सारे रूट्स आदमी देखकर, इधर बहुत सारा ट्रैफिक रूटिंग, जस्ट लाइक एयरक्राफ्ट्स में होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सो वी हैव द रूटिंग कंट्रोलर्स हियर, सो दे कीप एन आई ऑन अस, वी कीप ऑन टॉकिंग टू देम, इधर से निकल रहे हैं उधर से, दे कीप अस इन्फॉर्म्ड, ये तैर रहा है इसको छोड़ देना, वो निकल रहा है ये निकल रहा है, एंड द ट्रैफिक इज सो मच दैट इवन दिस इज नॉट एबल टू मैनेज. So underwater there is a tunnel, and through that tunnel passes a train, which is the tube train. So London, the capital of UK, and Paris, they are connected through that tube. कभी मौका मिले यूरोप जाने का, do cross it. ऊपर से जहाज जा रहे होंगे, अंदर से तुम ट्रेन में होगे. That's what they have done. So a busy area. What is this? Dover Strait. Is everyone okay? मैंने गड़बड़ बनाया, ऐसे इधर बनेगा एक्चुअली. So this is river Thames. नॉर्थ में आप देखोगे चैनल के बाद, डोवर स्ट्रेट के बाद थोड़ा ऊपर आएगा थेम्स रिवर, और जिस पर है कैपिटल लंदन. So just like Amazon was navigable, yes or no? So Thames River is also navigable, and ships London ऐसे ही जाते हैं, ships जाते हैं. So my first visit to London was through a river only, so I went through this. But normally that's not the best way to reach. बाकी जगह से पहुंच सकते हैं. Everyone, did we get that? So ये आपका यूके हुआ, इसका नॉर्थ एरिया दिखाई दे रहा है. नॉर्थ में क्या है? स्कॉटलैंड, एकदम नॉर्थ में स्कॉटलैंड रीजन दिखाई दे रहा है. दैट इज हिली एंड माउंटेनियस और नॉट? स्कॉटलैंड के ऊपर कुछ आइलैंड्स हैं जिन पे डेन लिखा हुआ, फेरो आइलैंड. फेरो आइलैंड है कहीं? नॉर्थ में जाओ, एकदम नॉर्थ में, मतलब इसको पार करके पेज के नॉर्थ में, पेज के एकदम टॉप पर फेरो आइलैंड है कहीं पर कोई आइलैंड्स? शेटलैंड है, शेटलैंड, उसके अलावा कुछ और? ऑकनी एंड शेटलैंड, ब्रैकेट में कुछ लिखा है, सब यूके के ही हैं. फेरो आइलैंड इधर तुम्हारे में दिख रहा है, इनके में नहीं दिख रहा है. आयरलैंड जहां पर है नहीं दिख रहा है. चलो, कुछ एटलसेस में है, कुछ में नहीं है. दैट्स परफेक्टली ओके. डन, ठीक है. तो यहां तक क्लियर हो गया, ये भी क्लियर. ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो. और लास्ट स्ट्रेट बता दो मुझे, थर्ड स्ट्रेट. 16 हो गया. सो कैन आई से इट सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम, या यूके फ्रॉम फ्रांस? यूके फ्रॉम फ्रांस, या फिर मेनलैंड यूरोप? Seventeenth, quickly tell me which is 17th. 17th. 17th जल्दी बताओ, स्ट्रेट का नाम. तो वही है स्ट्रेट, और क्या लोगे उसमें, जान लोगे उसकी. स्ट्रेट नहीं लिखा हुआ. तो काटेगट एंड स्कागेराक, SKAGERAK एंड काटेगट, दो स्ट्रेट्स हैं. दैट्स व्हाई आई मेड यू लुक एट दैट. तुम्हें नहीं मिलेगा तो मेरा काम है वो बताना, मिला कि नहीं? स्कागेराक काटेगट लिखा है कि नहीं लिखा है? कहां पर है पहले तो देखो जल्दी, 16 नंबर कहां पर है? फिजिकल पॉलिटिकल दोनों में देखो. 17 नंबर मिला. So what is this connecting? Skagerrak and Kattegat, what are they connecting? North Sea with Baltic Sea. Is everyone okay with this? Okay. Political map में बताओ, Skagerrak और Kattegat के नीचे कौन सी कंट्री? डेनमार्क. Did you find डेनमार्क? डेनमार्क, और डेनमार्क के नीचे कौन सी कंट्री? जर्मनी. Do you see Germany has coast on both North Sea as well as Baltic Sea? Everyone, can you see that? North Sea and Baltic Sea. नॉर्थ भी दिख रहा है, थोड़ा कोस्ट उसका नॉर्थ के साथ है और थोड़ा कोस्ट उसका बाल्टिक के साथ. डू यू ऑल्सो नो दैट जर्मनी हैज बीन एट द रूट ऑफ बोथ द वर्ल्ड वॉर्स? दोनों जगह ड्रामा जर्मनी का ही था. इस बार जर्मनी का नहीं लग रहा है मुझे, अगर हुआ तो.
इस बार जर्मनी का ड्रामा नहीं लग रहा है. हाँ. So anyways, that's where I'm saying Eurocentricity is going. पहले यूरोप सेंट्रिक था वो. Yes. So if you are at the center of a world war और आप बात बात पे लड़ जाते हो, so should you have a strong navy or not? The problem with Germany was it had to maintain two strong navies, one for the Baltic, one for the North Sea. So if your enemy is attacked from the North Sea, so North से hit करना पड़ेगा, Baltic से भी दोनों जगह करना पड़ेगा. And unfortunately both the navies cannot come to help each other. Why? Because बीच में Skagerrak आता है. Skagerrak has got Denmark in the south और नॉर्थ में कौन से कंट्रीज है? नॉर्वे और Norway and Sweden. If Norway, Sweden and Denmark are not with you, your navy moment it is trying to cross it, उसे तो बीच में उड़ा देंगे कि नहीं? Yes. So that was the problem of Germany. Did you understand the problem of Germany? जर्मनी की प्रॉब्लम ये हमेशा रही है, दोनों तरफ नेवी भी मेंटेन करना है एंड योर नेवीज हैव टू बी स्ट्रांग ऑन बोथ द साइड. उधर से रशिया मारेगा तो उसको उससे डील करना है, इधर से बाकी से करना है. इसका सोल्यूशन क्या है वो भी थोड़ी देर में बताता हूं. एवरीवन प्लीज ऑन द स्क्रीन आई हैव अनदर असाइनमेंट फॉर यू. अभी नीचे पेज में बचा हुआ जगह कि नहीं लिखने के लिए? कोई बात नहीं. यूरोप इज कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुले. ऑन द स्क्रीन you have to give me the name of the tail of the dragon. A, B the dragon, C the carrot, D, E, F the juta, and G. A B C D E F G. I want all these peninsulae. नाम बताइए. फिजिकल मैप से देखना है, जिसका नाम नहीं होगा वो मैं बता दूंगा. Everyone try finding the name of all these peninsulae. जल्दी से डालो. A B C D E F G. Wherever you have space, right there only. This is just an introduction of Europe. I have not entered Europe till now. Quickly, all of them. Whatever time you invest in finding out, that will be needed.
Are we done? So what is A? A is Kola Peninsula. Belongs to which country? चेक करके बोलो, पॉलिटिकल मैप देख के बोलो, वहीं पर तो है. थोड़ा सा पूछ है. पूछ ऑफ द ड्रैगन किस में है? मिला रशिया? नहीं मिला पॉलिटिकल मैप में. कोला पेनिनसुला बिलोंग्स टू रशिया. रशिया का न्यूक्लियर फ्लीट यहीं पे खड़ा हुआ है. ठीक है, तो रशिया कोला पेनिनसुला व्हाइट सी रशिया का है. ये पूरा का पूरा क्या है? रशिया. व्हाट इज बी? स्कैंडिनेविया. अब स्कैंडिनेविया एक ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप. पीपल हु स्पीक द सेम ग्रुप ऑफ लैंग्वेज. सो एवरीवन, स्कैंडिनेविया लिखवा रहा हूं. SCANDI नेविया. Scandinavia includes which countries? Norway, Sweden प्लस डेनमार्क. कल्चरल यूनिट है, सेम भाषा बोलते हैं. ठीक है, तो स्कैंडिनेविया का मतलब बता दिया. नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क. फिनलैंड नहीं है. फिनलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया. इज एवरीवन ओके? ड्रैगन है वो. कैन यू सी? ड्रैगन में सिर्फ 2 कंट्रीज है. पॉलिटिकल मैप में देखो, फिनलैंड नहीं है. ठीक है, तो स्कैंडिनेविया क्या है? स्कैंडिनेविया सिर्फ इतना है. सो दिस इज स्वीडन एंड दिस इज नॉर्वे. अब अगर मुझे फिनलैंड भी जाना है तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मुझे I have to take this and the tail also. So 1, 2, 3 and 4. 3 में फिनलैंड भी है, 4 में कोला भी है. इसको बोलते हैं पेनो स्कैंडिनेविया. Is everyone okay with that? Scandinavia only means Finland, Sweden and Finland नहीं, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क. फिनलैंड इज नॉट इंक्लूडेड. फिनलैंड के लिए फेनो डालना होगा. फिनलैंड के लिए फेनो डालना होगा. उसमें फिनलैंड भी आ जाएगा और रशिया का कोला भी आ जाएगा. कैन आई से एक्सटेंडेड स्कैंडिनेविया इज फेनो स्कैंडिनेविया? फेनो स्कैंडिनेविया इज एक्सटेंडेड स्कैंडिनेविया. दोनों पेनिनसुला पता चल गए. So this was for people who did not know it. सब मैंने डाल दिया. अभी आ गए सी में. गाजर का नाम क्या है? जटलैंड. JUTLAND. इसमें कौन सा कंट्री है? डेनमार्क. डिड यू फाइंड डेनमार्क? डेनमार्क के नीचे विच कंट्री? जर्मनी. ओके, सो एवरीवन, I was supposed to go to a German port called Rostock. क्या नाम है? Rostock में जा रहा था and I was coming from somewhere in the world and I had to go to Baltic Sea. Rostock शहर कहां पर है? जर्मनी के बाल्टिक में है. वहां पे Rostock लिखा है. So यहां पर नहीं होगा. So everyone pay attention. So Baltic Sea में इधर टाउन इज रॉस्टॉक. आई वॉज द नेविगेटिंग ऑफिसर. मुझे कैप्टन ने कहा अपना रूट बनाओ. मैंने रूट बनाया एंड आई वॉज गोइंग थ्रू स्कागेराक एंड काटेगट. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं कभी उधर गया नहीं था. ऐसे देखेंगे कैसा लगता है उधर जाकर. सो व्हेन वी वर गोइंग हियर, द कैप्टन हैड लुक्ड एट माय रूटिंग एंड ही वाज ओके विद इट. वी वर प्लानिंग. यहां पर हमें ऑर्डर्स आए दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्कागेराक एंड काटेगट. हमने कहा उधर नहीं जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे? How will we reach Rostock? They said you will come to Germany. And Germany में the German emperor at that time, Bismarck. Have you heard of this name? The person who unified all Germany, Bismarck. तो Bismarck ने ग्रेटर जर्मनी का जो प्लान बनाया था उसमें ही realized that his army, the two navies will have a problem. So उसने यहाँ पर एक कनाल खुदवाया था, which was called Bismarck Canal, but now its name has changed to Kiel Canal. Check करो. Kiel लिखा है KIEL.
Kiel Canal. Remember Panama Canal? Panama Canal, Latin America, Suez Canal, Africa. Suez Canal का एकदम डेजर्ट था, किसी काम का नहीं था. Kiel Canal. So they said you'll have to go and you'll have to report to the German authorities and they will allow you to enter Kiel Canal and they will put someone on board, वो आपको उधर से रास्ते से ले जाएगा. तो ये शॉर्टकट हो गया कि नहीं? ऊपर जाना भी नहीं पड़ा. And the higher you go in latitudes, it becomes colder and the winds become stronger. sea भी rough है, तो मुश्किल है. So the company gave us the orders that you use the Kiel Canal. So we used the Kiel Canal to reach Rostock. Kiel Canal मिल गया. So Kiel Canal connects which two seas? North Sea and Baltic Sea. So that's the one of the most beautiful canal. बहुत कम यूज होता है. पनामा कनाल यूज हेवीली. सुएज कनाल में बहुत हैवी ट्रैफिक है. यहाँ पे बाल्टिक में कोई जाता ही नहीं. इट इज लाइक अ हनीमून कनाल, वेरी ब्यूटीफुल. अभी मेरे पास पिक्चर्स नहीं, मैं भी अगली क्लास में कुछ लेकर आऊंगा. So that's your Kiel Canal. Get that? Kiel Canal से फिर रॉस्टॉक पहुंच गए. फिर I was a little sad. यार स्ट्रेट तो देखे ही नहीं. So on our way back, we took this route and we came through the straits also. So मर्जी है. अगर आप Kiel Canal लोगे तो what is there? What is there? पैसा देना पड़ेगा. Remember you go through the highways. GPS में लिखा होता है इस रोड पे जाओगे तो टोल लगेगा, इससे जाओगे तो नहीं लगेगा. तो ये natural है. This is man-made. So Kiel Canal you will be charged for that. Is everyone okay with that? So Kiel Canal भी आ गया, वो भी आ गया. And the peninsula is called Jutland Peninsula. किसका है? डेनमार्क. D. फ्रांस का है. फ्रांस में है. ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटनी. ब्रिटनी स्पीयर्स. अगर आप गाने सुनते हो तो ब्रिटनी आपको नाम होगा, वरना भजन सुनते हो तो ब्रिटेन ही चलेगा, वरना ब्रिटनी इज द प्लेस. सो इस पेनिनसुला का नाम ब्रिटनी. ब्रिटनी पेनिनसुला. ई का नाम क्या है? आइबेरिया. सो आइबेरियन पेनिनसुला. And I want to tell you that it is Iberian Peninsula where Latin countries are there. So Latin में कौन सी कंट्री है Iberian Peninsula में? जल्दी बताओ कौन सी दो कंट्रीज हैं पॉलिटिकल मैप में? Portugal and Spain. Remember they captured the entire Latin America. That is why we call them what? Latin America, because of these two. कौन सी भाषा बोलते हैं? Spanish and Portugal. That is what is spread in Latin America. Most of them speak Spanish. Portugal in Brazil. So that's the this thing. ये जूता क्या है? इटालियन. इटालियन. यहां पे इटली है, इटली. और G is BALKAN. बाल्कन पेनिनसुला. मिल गया बाल्कन पेनिनसुला. Balkan Peninsula. Did you find them? So all the names should be with you A to G. This was just introduction. अगर आपका मैप खराब हो गया है कोई दिक्कत नहीं. मिला है नहीं मिला? फिजिकल मैप पे बाल्कन नहीं लिखा हुआ. अच्छा, बाल्कन माउंटेन मिला है तो उसी के नाम से ही तो पेनिनसुला बना. बढ़िया यार. So Balkan Peninsula. Everyone, you heard of a term in political science called balkanization. Political science में when a country gets disintegrated into smaller parts, that process is called balkanization. The origin of the word balkanization comes from this peninsula. There used to be a country called Yugoslavia. Yugoslavia disintegrated, broken down, and many countries came over there. In which peninsula? Balkan Peninsula. आज कौन सी कंट्रीज है वहां पर? देखो जरा बाल्कन पेनिनसुला पॉलिटिकल मैप. बहुत सारी. एड्रियाटिक सी के साथ में छोटी छोटी कंट्रियां. जूते के साथ में देखो एड्रियाटिक सी है. जूते के साथ में एड्रियाटिक सी. एड्रियाटिक सी के कोस्ट पे देखो क्रोशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बेनिया सबसे नीचे आएगा. ये सुनो, all this area used to be a country called as Yugoslavia. Yugoslavia broke down and broke into these smaller little countries. So in countries को क्या कहते हैं? Balkan nations. What are these called as? Balkan nation. And the process of breaking down of a country into smaller parts is called balkanization. So India में आंध्र प्रदेश
broke and created Telangana. Madhya Pradesh broke and created Chhattisgarh. Is this balkanization or not? No, this is not balkanization. छोटा होना नहीं होता है, breaking into different countries. So is Chhattisgarh a country? Within your country, you can reorganize your states. But when a country gets bifurcated, that is called balkanization. Do we get that? Sir, F के पेनिनसुला क्या बोले आप? F. F is Italian peninsula. इटली है वहां पर, Italian peninsula. So creation of state is not balkanization, but when you break a country, when you decide that a country should be broken into parts, तब वो balkanization कहलाता. Is everyone okay with balkanization? Do we know where the word comes from? So this was the introduction of physical map of Europe. Everyone comfortable? काफी कचरा किया, घर जाके इसे दोबारा से बना लेंगे. Shall we look at important latitudes? यहाँ कहीं पे 30 आएगा, 30 डिग्रीज नॉर्थ. 60 का है, बाल्टिक को कट कर रहा है. जल्दी देखो 60 की लाइन किसको कट कर रही है? बाल्टिक. इज 60 पासिंग थ्रू बाल्टिक? चेक. 60 बाल्टिक हो गया. अगर ये 60 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री नॉर्थ है, व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्टिनेंट इज दिस? एब्सोल्युटली टेम्परेट. ये सुनो सर, एफ इज एपेनाइन. एफ में बेटा माउंटेन रेंजेस है, उसका नाम एपेनाइन है. पेनिनसुला तो इटालियन हो जाएगा ना. हु इज दिस? सनी शर्मा. आई होप यू गॉट योर आंसर राइट. ई का पेनिनसुला. सर ई का पेनिनसुला, ई में यहां पे लिखा बेटा आइबेरिया. IBERIA, आइबेरियन. आइबेरियन मिल गया. So everyone please plot your latitudes और उसमें भी 60 और 30 मार्क करो जल्दी से. Run your marker on that. Run your marker on 30 and 60. Very opposite to Africa. Africa was totally located in tropical. This one is totally located in temperate. Remember Aristotle telling his students why they are supposed to be great? Because temperate belt is the best belt. So climate wise they are in the best belt. One more interesting thing I want you to note, everyone. Looking at the physical map of Europe. Everyone looking at the physical map of Europe, which color predominates on land? Green. Whereas in Africa it was yellow. So Africa had a shortage of plains, इनके पास plain ही plain है. So opposite of this. So why geography of Africa did not allow it to develop, and why geography of Europe was so favorable? Europe was all plain, Africa was all plateau, mountainous and desert. Yes, and climate wise they are temperate. Africa की rivers की क्या problem थी? Non-navigable. Yes or no? Why non-navigable? Europe में क्या है? So all rivers are navigable, and they went a step ahead. They connected all of them. जो आपने सुना इंडिया में कनेक्ट ऑल रिवर्स की जो बात होती है, रिवर इंटरलिंकिंग, यूरोप की सारी रिवर्स कनेक्टेड है. And their inland waterways is one of the most developed waterways in the world, and inland waterway is the cheapest and the most environment friendly means of transport for bulk goods. जब मैं फ्रांस गया सीन रिवर में, मैंने सीन रिवर में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स देखे, रिवर पे चल रहे हैं. Because there are two aircraft companies in the world. One is Boeing, US बनाता है, दूसरा is Airbus, पूरा यूरोपियन यूनियन वही बनाता है. तो इन्हीं रिवर्स पे उनके पार्ट्स चल रहे हैं. अमेजिंग रिवर्स टू नेविगेट थ्रू. लंदन कैसे पहुंचा? रिवर से पहुंचा. पेरिस कैसे पहुंचा? मैं रिवर से पहुंचा. सो एवरीथिंग, ऑल दोज रिवर्स आर वेरी ब्यूटिफुली नेविगेबल. और हमारी रिवर, उस पे झाग है नहीं है, उस पे झाग पे केमिकल मारना है. हम इसलिए नहीं साफ कर पा रहे क्योंकि पिछले वालों ने 15 साल से उसमें सिर्फ फेंका था. अब हम उनका साफ कर रहे हैं. कब तक साफ करेंगे? ऐसे ऐसे चल रहा है. चचा जब चुनाव जीतने थे तब तो बोला था सब कर देंगे. अब जीतने के बाद बोले मेरा मीम क्यों बना रहे हो? तुम दूसरे का मामा बना देते, अब तुम्हारा मीम बनेगा. तो हमारा चीफ मिनिस्टर रो रहा है मेरा मीम बन गया. इतना पर्सनल मत हो यार. अगर तुम्हारे रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं तो बहुत तगड़े वाले, बोलने पे आते हो तो रुकते नहीं हो. दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज ऑफ बीइंग इन पब्लिक लाइफ. मैं नदी साफ करने की जगह, उस पे रोने की जगह मीम पे रो रहा है.
नारी शक्ति, चुनाव में जीते नारी शक्ति के नाम के जीते, अब नारी जो है, एंड आई टोल्ड यू women आर मच मोर थिंकर्स, दे आर नॉट ऐसे नहीं इंस्टिंक्टिव रोने लग जाए, बट ठीक है, सबका अपना कैलिबर होता है. ऑल मेन आर नॉट strong enough, all women are not balanced enough, yes, so they will have their own maturity, but I would say all men have women in them and all women have men in them. लेफ्ट और राइट तो दोनों का है कि नहीं. मीम पे इमोशनल कौन हो जाएगा, लेफ्ट ब्रेन, और मुझको ये बोल दिया, हो ऐसे कर रहे. इमेजिन यार, बहातुरी विधानसभा पे वो मीम पे रो रहे हैं यार. दैट्स नॉट अ मैटर, बट ठीक है, चल रहा है. I think that's where tolerance comes in, and with bigger responsibility, I think they should be more tolerant and more accepting of that. हाँ, तो पॉलिटिकल मैप कर ले अब इसका. पॉलिटिकल भी तो बहुत सारा है. पॉलिटिकल मैप प्लीज राइट डाउन. पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप, हेडिंग देंगे. यूरोप द वर्ल्ड्स सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. अभी तक क्या कहा था, सिक्स्थ लार्जेस्ट. कैन आई ऑल्सो कॉल इट द सेकंड स्मॉलेस्ट? प्लीज राइट डाउन. यूरोप द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, smallest continent. In terms of latitudes, spreads from 35 degrees north to 80 degrees north. 35 degrees north to 80 degrees north. And in terms of longitude, from 10 degree west to 60 degrees east. 60 degrees east. और यहाँ पे 30 है तो यहाँ का टिप क्या हो गया, 35, और यहाँ पे 60 है तो टॉप कितना है, 80 degrees north. Yes, please write down. The continent contains around 45 to 50 sovereign countries. The continent contains around 45 to 50 sovereign countries. सर ये एक क्यों नहीं है, बिकॉज रिमेंबर दोस बाल्कन रीजन, किसी को इंडिपेंडेंट मिल गया है, कोई क्लेम कर रहा है, नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई देयर आर कंफ्यूजन्स ऑन दैट. सो 45 to 50 countries they are there, with Russia being the largest, and Vatican City being the smallest. Russia being the largest and Vatican City being the smallest. Is everyone with me? Now question comes, which is the largest country of Europe, and options are A, B, C, D, and Russia is not there. उसकी जगह यूक्रेन लिख दिया है. So now the left brain will say Sachin sir said Russia is the largest country. यहाँ तो दिया ही नहीं. And out of the four, if I have to select one, they did not ask us which is larger out of them. They asked which is the largest of Europe. So largest of Europe तब यूक्रेन क्यों हो जाएगा? Because Russia is divided. Russia का large part lies in Asia also. तो Russia is Asia and Europe. अगर completely in Europe आएगा तो क्या हो जाएगा? Ukraine becomes the largest. So don't worry on that. अगर वो आ जाता है तो वो भी clear रहना चाहिए that we are clear on that. ठीक है, रशिया हो गया, ये हो गया. और छोटा कंट्री कौन सा बताया? वेटिकन सिटी, द हेडक्वार्टर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. इटली में जूता में वेटिकन सिटी देखो, मिला. अब आपको 4 छोटे छोटे देश ढूंढने, एवरीवन 4 छोटे देश बताऊं. वेटिकन सिटी मिल गया. वेटिकन सिटी के ईस्ट में डू यू हैव एड्रियाटिक सी? एड्रियाटिक सी, इटली के कोस्ट पर ही एड्रियाटिक सी पर आपको मिलेगा सैन मेरिनो.
छोटा सा देश मिला सैन मरीनो, दो छोटे देश हो गए। वेटिकन सिटी इज अ टाइनी कंट्री, कुछ स्क्वायर किलोमीटर है ये, बस इतना सही है कंट्री, मतलब जोर से छीकोगे तो सारे कोने में आवाज जाएगी, इतना सा कंट्री है वो। दैट सेकंड इज सैन मरीनो, डन। नाउ ऑन द पॉलिटिकल मैप प्लीज गो ऑन द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस, फ्रांस ढूंढो वेस्ट में है, और स्पेन के बॉर्डर, फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर लाइन, उसमें छोटा कंट्री एंडोरा, मिला एंडोरा, मिल गया एंडोरा। तीन छोटू कंट्रीज, दे लास्ट यू टू अरेंज देम, मैच ए बी सी डी, तो देर आर फोर छोटू कंट्रीज, वन इज वेटिकन, अदर इज सैन मेरिनो, थर्ड इज एंडोरा। आपका होमवर्क है इनको अरेंज करके आना साइज वाइज, ठीक है, इंटरनेट से देखना। लास्ट है फ्रांस, डिड यू सी फ्रांस? फ्रांस हैज अ बॉर्डर विद स्पेन, फ्रांस हैज अ कोस्ट विद मेडिटेरेनियन सी, उस पर एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, मोनाको दिखा, मोनाको टाइनी लिटिल कंट्री, फ्रांस और इटली बॉर्डर के पास में, डिड यू फाइंड मोनाको? तो ये चार कंट्री मार्क होनी चाहिए, दीज आर टाइनी लिटिल कंट्रीज, जैसे वहां पर था लिसोथो एंड स्वाजीलैंड, ठीक है, सो दोज वर टाइनी कंट्रीज, ऐसे ये छोटा कंट्रीज, इनको प्रीलिम्स में वी गेट अ क्वेश्चन, अरेंज देम, मैच देम, सो वी हैव सैन मेरिनो, वी हैव वेटिकन सिटी, वी हैव मोनाको एंड वी हैव एंडोरा, ठीक है, छोटी कंट्रीज हो गए, परफेक्ट, चार हो गए, हाँ, तो चार छोटा कंट्रीज, वी आर डन विद देम। वी आर लुकिंग एट पॉलिटिकल मैप, सो नाउ एवरीवन, एज आई सेड, यू नो, रिमेंबरिंग 7 से ज्यादा इज डिफिकल्ट, और यहाँ पे कितने 45 है ना, और इधर तो वो भी नहीं है कि टचिंग इक्वेटर, वो भी मारा गया, बट एक है टचिंग ग्रीनविच, तो इंग्लैंड स्पेन फ्रांस, वो तीन है कि नहीं इधर, रिमेंबर 8 थे, 5 अफ्रीका में थे, 5 वर इन अफ्रीका, ऐसा कुछ याद हो तो, गजनी मोमेंट क्या बात कर रहा, कब बताया था, मिला, जल्दी से यहाँ पे कम से कम वो लाइन तो चलाओ, 0 डिग्री लाइन, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, पॉलिटिकल मैप में चलाना, ग्रीनविच लाइन जो बना 0 डिग्री, तो इट विल टच इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, फिर नीचे चला जाएगा, नीचे जो भी जा रहा है अल्जीरिया एंड ऑल दैट, यू हैव टू मेमोराइज दैट। नाउ आई वांट टू cluster them. So my first cluster, everyone, first cluster, you have to shout out the name of the countries. My first cluster is 3 countries. They are called the Scandinavian countries. Shout out the name. Norway, Sweden, तीनों की कैपिटल जल्दी से, everyone. नॉर्वे इज ऑस्लो, मिला ऑस्लो, नोबेल प्राइज नॉर्वे और स्वीडन से दिया जाता है, पीस प्राइज स्वीडन से मिलता है, सो नॉर्वे स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, हैव यू हर्ड ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट, वो यहीं से आता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। नॉर्वे, स्वीडन, these Scandinavian countries are most popular for the highest human development index in the world. They are the ones which have the best of the education systems and all that. So Norway, Sweden हो गया, ये ड्रैगन हो गया, ड्रैगन का कैरेट कौन है, डेनमार्क इज द कैरेट, कोपेनहेगन, कैपिटल इज कोपेनहेगन, ड्रैगन एंड कैरेट आर सेपरेटेड बाय विच स्ट्रेट, स्ट्रेट, काटेगट एंड स्कागेराक, काटेगट एंड स्कागेराक, बहुत सुंदर स्ट्रेट है, दिस पीपल आर वेरी वेरी हाई ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में विंड मिल्स लगी हुई हैं, अमेजिंग एरिया, द होल थिंग दे पुट ऑन विंड मिल्स, I couldn't believe it. There are bridges which are going on the land, ऐसे जाते हैं, ब्रिज जा रहे हैं, and then they are going inside the sea, फिर वो अंडर सी हो जाएंगे, हमारे तो खड़े खड़े गिर जाते हैं यार, तो हमारे ब्रिज बनते बनते गिर जाता है, बनाता है फिर गिराता है, उसमें लोग लटक रहे, किसी तरह जान बचा रहे, इनका ब्रिज, यू आर अमेज्ड, यू नो, द शिप इज गोइंग एंड आई एम वंडरिंग, यार ये तो ब्रिज आ रहा है, एंड द ब्रिज गोज इनसाइड द सी, so it's everything is covered by them, so very very amazing things that they have done. रिन्यूएबल एनर्जी का अगर कहीं पर काम हो रहा है, स्पेशली विंड एनर्जी, दीज आर द पीपल हु आर डूइंग ट्रिमेंडस एनर्जी वर्क, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस, लाइफ इंडाइसेस, एवरीथिंग इज ग्रेट, बहुत पैसा भी इनके पास, एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट, नोन फॉर देयर नॉर्डिक ट्रेडिशन, तो यहाँ के जो लोग हैं, these Nordics, they were known to be the first people who had explored route to North America, कोलंबस से पहले भी, you've heard of Vikings,
तो कोलंबस से पहले अपना जहाज लेके गए, नॉर्थ अमेरिका हो भी आए, 2-4 पोलर बेयर को मार के वापस भी आ गए और कोई क्लेम नहीं लिया. रिमेंबर एरिस्टोटल सेड यही नहीं है, ये है. दे डिड नॉट ले क्लेम. वो कोलंबस गया, कोलंबस के पीछे स्पेनिश क्वीन ने पूरी आर्मी भेज दी एंड दे दिस थिंग. ये लोग गए इधर उधर मारते मारते, ढूंढा ढूंढा, अच्छे नया कंट्री है, चलो ठीक है, छोड़कर आ गए. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वाइकिंग्स. एंड दिस इज व्हाट आई हर्ड डोनाल्ड ट्रंप टॉकिंग, that it just happened that your boat landed on Greenland and now you are claiming Greenland is yours. So this is what he is telling to Denmark कि आपकी एक बोट जो है ग्रीनलैंड पे लैंड कर गई थी, इसलिए यू आर सेइंग हमसे पहले चली गई, बट दैट डजंट मीन दैट ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू यू. तो बेटा सब तो बोट से ही पता चला है. देयर बोट लैंडेड इन इंडिया, दे कॉलोनाइज्ड अस. वो हिस्ट्री थोड़ी ना मिटा सकते हैं. इनफैक्ट देयर बोट लैंडेड इन नॉर्थ अमेरिका, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचा है. ये सुनो, बट ठीक है, दैट्स व्हाट दे. अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है. बिहेविंग लाइक यू नो क्वेश्चन मैंने बनाया, मैं यूपीएससी हूँ, जो आंसर होगा वही सही माना जाएगा. यस, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अभी इन्होंने क्या किया था, द ट्रांसलेशन ब्लंडर्स विच दे कीप ऑन डूइंग. I'll share it some other time. तो ये हो गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. फैनो स्कैंडिनेविया में क्या ऐड किया, एक और कंट्री ऐड किया, फिनलैंड. फिनलैंड इज द कंट्री विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स. लोग जाते हैं फिनलैंड, सेंटा क्लॉज का गांव यहीं पर है. इफ यू थिंक यू नो लाइक दिस थिंग्स, तो सेंटा क्लॉज आता कहां से, हिज विलेज इज इन फिनलैंड. जनरली आई वाज अप्रोचिंग विंटर्स जब मैं यहाँ पहुंचा था. सो यू विल फाइंड विंटर्स में सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है. तो सनसेट मतलब इनका दिन होगा कुछ 11 बजे दिन होगा, और बाय 2 o'clock द डे इज ओवर, इट्स डार्क. और जब समर्स आ रहे थे, व्हेन आई रीच द समर्स, इट वाज 11 PM एट नाइट एंड सनलाइट. अबे दिन खत्म ही नहीं हो रहा, फिर अंधेरा शुरू होगा 11 बजे और 3 बजे फिर से सूरज आ जाएगा. तो रिमेंबर 12 months, sorry 6 months day, 6 months night. As you go closer to the pole, what happens? Your duration of day and night will depend on the season. In summer season, your days can be as long as 18 hours, 19 hours. तब समझ में नहीं आता सोना कब है. बाहर तो सनलाइट है, नींद ही नहीं आ रही. और बाकी जगह पर क्या है, जब अंधेरा होता है तो 3 दिन का दिन होता है, 3 घंटे में दिन या वो सब कुछ बंद हो जाता है. सो दैट्स व्हाट इज दैट. They have something called as a daylight saving time. We'll talk about that some other time. But Finland is called the country of 1000 lakes. किसी ने स्टार्ट में कहा कि सर why lakes are found in Canada? Same reason से lakes are found in Finland, and that is what we'll talk कल की क्लास में करते हैं. So कल की क्लास में your homework is so 2 countries, small यूरोपियन कंट्रीज कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद CIS 15 कंट्रीज, ये करके आना है. CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. So there was a country called USSR. Yes, Union of Soviet Socialist Secular Soviet Socialist Republic. This is रशिया से पहले 1991 में it broke into 15 countries with Russia being the largest one. That marked the end of Cold War. ठीक है, हिस्ट्री में आपको कोल्ड वॉर बताया गया होगा. तो ये 15 कंट्रीज जो निकले थे, उनमें से कुछ यूरोप में भी हैं, तो CIS. आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम आल्सो. सो स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज, CIS कंट्रीज, दैट्स देयर. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट why Norway has indented coastline. Indented in हिंदी we call it कटा फटा तट, दंतुरित तट, ऐसा है इनका कोस्ट. वो जो ड्रैगन आपने बनाया था, ड्रैगन, यू विल फाइंड द कोस्ट लाइन इज लाइक दैट. व्हाई इज दिस कोस्ट लाइन इंडेंटेड? उसके बाद क्या है, व्हाई नॉर्वे हैज इंडेंटेड कोस्ट लाइन, व्हाई फिनलैंड हैज thousands of lake, and revise
मैप, ड्राइंग एंड लेबलिंग ऑफ यूरोप हो जाएगा आज का। हर कॉन्टिनेंट में वी स्पेंड 2 क्लासेस। आज इंट्रोडक्शन था, फिजिकल एंड पॉलिटिकल। आई एम नॉट इन अ हरी, टेक योर टाइम, नाउ द प्रोसेस इज नोन। सो वंस वी नो, अब इसका क्लाइमेट भी पता चल जाए, क्लाइमेट से नाउ वी कैन गेट वेजिटेशन ऑल्सो, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो, आई कैन डू दैट। यस नो सर, हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। क्यों, कल मिलेंगे ना, कल मकर संक्रांति है तो कल मिलेंगे हम लोग। परसों है, 14th को है, तो ये क्या कुंडली आगे पीछे हो रही है? ऐसे होता है ना, जन्माष्टमी 1 नहीं 2 दिन चल रही है, तो 13 14। चलो आज भी शाम को लोहड़ी जलाएंगे, नहीं पोल्यूशन है, रेवड़ी खा लेना। कल भी सेलिब्रेट करेंगे, परसों भी सेलिब्रेट करेंगे, यूरोपियंस के साथ सेलिब्रेट करें, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो, थैंक यू, जय हिंद।